घर बनाने का सपना दिखाने वाले से हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके शहर में कई ऐसी रियल एस्टेट कंपनी हैं जो आपसे पैसे तो ले लेगी, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेगा ये आपको इस रिपोर्ट को देखकर ही पता चलेगा। ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आप उस हर ठगी से सचेत हो जाए जो आपके इर्द गिर्द रहते हों। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने सपनों का घर, तो हो जाइए थोड़े सावधान। कोलकाता में मौजूद है ऐसी रियल एस्टेट कंपनीज जो आपसे घर खरीदने के पैसे तो ले लेंगी, पर वो आपका सपनों का घर कभी तैयार नहीं होगा। आइए ऐसे ही एक रियल एस्टेट कंपनी की जानकारी देते हैं हम आपको। कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी। जी हाँ, ये सिचुएटेड है कोना एक्सप्रेसवे के पास, जहां अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि कोई सुहाना सपना, एक आलीशान जगह जहां बन सकता है आपके सपनों का घर। पर कहते हैं जो दिखता है वो सच नहीं होता अक्सर। आइए दिखाते हैं हम आपको कि इस सच के पीछे का क्या है चेहरा। लाइव कोलकाता की टीम को कोलकाता वेस्ट सिटी के एक बायर ने किया अप्रोच और बताया अपनी आप बीती। उसने बताया कि किस तरह 3 साल पहले वो फंस गई थी इस रियल एस्टेट कंपनी के झांसे में और दे दिए 9 लाख रुपए। तब उनसे किए गए थे वादे कि कुछ दिन के अंदर इस पूरे इलाके में घरों में लोग आके रहने लगेंगे और ये जगह एकदम सुनसान नहीं रहेगी। पर 3 साल बाद वही मंजर देखने को मिला और जब बार बार बायर ने अपने पैसे मांगे तो उन्हें टाल दिया गया कि कुछ दिन में पैसे लौटा देंगे। पर 3 साल तक यही सिलसिला चलता जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं एक फोन कॉल जिसमें आप खुद सुन पाएंगे कि किस तरह से पैसों के लिए दलीलें दी जा रही हैं। और इतना ही नहीं, ये तक बताया जा रहा है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी में इन्वेस्ट किए अपने पैसों को देना बंद कर दिया है आगे और इन्वेस्ट किए बाकी के पैसे मांग रहे हैं। হ্যালো, হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী ম্যাডাম বলছেন? হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ, আমি প্রিয়াঙ্কা বলছি। আমাদের যে ল্যান্ড নেওয়া ছিল মিস্টার গৌতম দের মেয়ে কথা বলছি। নিশ্চয়ই হ্যাঁ, চিনতে বলুন। পেরেছেন ম্যাডাম। আমি আপনাকে প্রচুরবার ফোন করেছি, তো আমার নাম্বার আপনি জেনে যাওয়ার পর থেকে আর তোলেন না। আমার বাবাও আপনাকে ফোন করেছে, তোলেন। তো ম্যাডাম আমরা তো চেক ওয়াইজ 9 লক্ষ টাকা আপনাদের কলকাতা ওয়েস্টকে আমরা পেমেন্ট করেছি। তো ম্যাডাম আপনি বলেছেন যে পেমেন্টটা, আমি আপনাকে এটাও বলেছিলাম যে আপনি ম্যাডাম ভেতর থেকে আমাকে করে দিন, পুরো ল্যান্ডটা কিনে বাড়িটা তৈরি করে তারপর আপনি রেজিস্ট্রি করবেন। এই আমার বাবার সাথে চুক্তি হয়েছিল, তাই তো? হুম। হ্যাঁ, এবার আপনি আমাকে, হ্যাঁ তাহলে এবার আপনাদের ওখানে ম্যাডাম সেইভাবে তো ডেভেলপ হয়নি ম্যাডাম, ওখানে কেউ থাকছে তো না প্রচুর ডেভেলপ হয়েছে। কে ম্যাডাম। বলেছে আমি develop ম্যাডাম হয়েছে? আমি কালকে রবিবার, তার আগের রবিবারও আপনার ওখানে গেছিলাম ম্যাডাম। আমাদের আপনি যে কি ডেভেলপমেন্ট বলতে কি বোঝান বলুন তো, আপনি কি বোঝান সেটা আমাকে বলুন। আপনি যদি বলেন এখানে 5 স্টার হোটেল হয়েছে, না না, হবে, হয়নি, সেটা আমি বলে দিচ্ছি হয়নি। 5 স্টার হোটেলের কথা তো ম্যাডাম বলছি না, আমাদের জমির আশেপাশে কি কোনো লোক বসবাস করছে আমি সেইটা আপনাকে বলতে চাই। কিন্তু আপনার থেকে রেডিমেড বাংলো কিনছি না। রেডিমেড বাংলো কিনলে আমি সামনের দিকে, আমিও জানি আপনার এটা ডেভেলপড, আপনার রিসেল প্রপার্টি আসছে, কেউ যে কিনছে সে 2 দিনের 4 দিনের মধ্যে বিক্রি করে চলে যাচ্ছে। আমাদের কাছে ম্যাডাম সব রকমই থাকে। কেন কি আপনাদের জায়গাটা পছন্দ ছিল বলেই কিন্তু ম্যাডাম আমাদের এতগুলো টাকা ইনভেস্ট করা। আমি যখন সেটা আমরা বানিয়ে দেবো না, সে তো তাহলে ম্যাডাম আপনি নিজে বলুন আজকে এই এই প্রসঙ্গতে আসার মানেটা কি? আজকে আমি আপনাকে ফোন করে বারবার হেজিটেশন করছি, আমার বাবা ফোন দিয়ে আপনাকে ফোন যাচ্ছে, আপনি ফোন তুলছেন না। আজকে আপনার সাথে কিন্তু আমার ম্যাডাম কোনো শত্রুতা নেই, বা আপনি আমার যদি টাকা থাকতো আমি দিয়ে দেবো, কারণ আপনার সাথে থেকেও আপনার বাবার সাথে আমার বেশি ভালো রিলেশনশিপ ছিল, সেটা হয়তো আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এখন আপনি থাকতে পারবেন না সেটা আলাদা কথা, আপনি কিন্তু থাকতে পারবেন না ম্যাডাম বলবেন না। আজকে থাকতে না পারলে আমরা কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে এতদিন ধরে পেমেন্ট দেওয়া বা পেমেন্ট আজকে বন্ধ করেছি, তার কেন ভাই? আপনি নিজে মুখে নিজেই বললেন যে সবারই লো পেমেন্ট, তাহলে সবাই, আমি পাগল, আরো আদার্স 3টে লোক ন্যাচারালি পাগল না, তারা কেন আজকে লো পেমেন্ট করতে যাবে? সামথিং ওয়াজ দেয়ার, এই কারণে ম্যাডাম লো পেমেন্ট হয়েছে। আজকে আপনি নিজে মুখে ম্যাডাম এটা স্বীকার করলেন যে ওখানে আরো লো পেমেন্ট আছে। তার মানে
প্রত্যেকটা লোক ম্যাডাম ভুল, শুধু আপনার অফিস ঠিক, দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। তো ওই পোর্শনটা তো হয়নি আমাদের, সেই জন্যই ওই পোর্শনটা হয়নি ম্যাডাম, সেইটাই তো আমি আপনাকে। जब हमारी टीम ने और जांच पड़ताल की तो पता चला 2008 से 2013 के बीच में कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी ने बहुत सारी डेडलाइंस मिस की है, जिसके अंतर्गत वो लोगों को पूरी तरीके से घर कंप्लीट करके देने वाले थे। उसी समय सलीम ग्रुप और सिपुत्रा डेवलपमेंट, जो कि कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी के ओनर्स हैं, वो भाग गए। ठीक उसके बाद से कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी के बायर्स ने एक एसोसिएशन का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया कोलकाता वेस्ट बायर वेलफेयर एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का निर्माण किया गया ताकि वो कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी में हो रही धोखेबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके। 2011 के आसपास कुछ घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, पर उसके बाद किसी भी घर को कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला गया। जुलाई 2011 में अभय मोहन झा, जो कि हिमल साउथ एशियन एक फाउंडेशन के बंदे हैं, वो कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी में गए यहाँ का जायजा लेने, और जैसे कि हमारी टीम ने देखा वही हाल उन्होंने भी देखा कि पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी नहीं था और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही दिख रहे थे। इसके बाद जब वो चौरंगी रोड स्थित उनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि 200 से ज्यादा लोगों ने, जिन्होंने कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी में अपने पैसे लगाए थे, धरने पे बैठे हुए हैं कि उन्हें पूरे पैसे वापस किए जाए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ममता बनर्जी को भी एक लिखित चिट्ठी भेजी थी उनके साथ हो रहे धोखेदारी को लेकर के। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें विकिपीडिया की वेबसाइट से मिली, जहाँ पे साफ साफ सारी चीजें लिखी हुई थी। इस चीजों का जायजा भी हमारी टीम ने लिया और हमें भी यही सच सामने मिला। लाइव कोलकाता की टीम इस मामले की पूरी छानबीन करने पहुंची कोलकाता वेस्ट सिटी। घुसते ही सारे जो दृश्य हमने देखा उसने हमारे शक को यकीन में बदल दिया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी नहीं रह रहा था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह तैनात थे। जब हमने मार्केटिंग टीम के एक सदस्य से बात की तो उसने कहा कि लोग रहते हैं और अधिकतर लोग इन्वेस्टर हैं जो कि NRI हैं, पैसा लगा के बाहर रहते हैं। अपनी छानबीन को और पक्का करने के लिए हमने बात की मार्केटिंग टीम के सदस्य से, जहां उसने बताया इस कॉम्प्लेक्स में कितनी टाइप की फैसिलिटी है और ये कितना सुंदर है और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब हमने पेमेंट के बारे में बात की तो उसने बताया कि पेमेंट के अगेंस्ट हमें पक्के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स और रिसीट्स दी जाएंगी। जबकि जिस बायर ने हमें अप्रोच किया था उसने बताया था कि उसे कोई पेपर्स नहीं मिले थे 9 लाख रुपए देने के बावजूद भी। वहीं जब हमने पूछा कि मनी रिफंड पॉलिसी क्या है तो ये सुनिए बंदा क्या जवाब दे रहा है। जी हाँ, ये तो कह रहा है कि 1 हफ्ते में रिफंड होता है, पर जो फोन कॉल हमने रिकॉर्ड किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का लैंड 2 टाइप का है। एक कमर्शियल बड़ा लैंड, मतलब समझ लीजिए 13 कट्ठा 14 कट्ठा के ऊपर, तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा शायद। नहीं, उतना तो हम लोग बहुत बड़ा हो जाएगा हम तो लोग। और एक यूनिट हम लोग का है कस्टमाइज विला हम लोग कहते हैं, अच्छा, जो आपका CD जोन में है। CD मतलब आपका आगे जो देख रहे हैं ये आपका A और B क्लस्टर। मैं हम लोग पूरा तक गए नहीं, थोड़ा सा आपका आइडिया दे रहा हूँ आपको। सामने जो आगे जो देखे ना, वो जो बंगलो है सामने जो अभी रह रहा है आगे, वो आपका A और B क्लस्टर। ज्यादातर खाली खाली लग रहा था। उस साइड में जो आप गए थे CD क्लस्टर, उसमें खाली है, उसमें मतलब 30% अभी आया है, अच्छा 70% अभी वैकेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपके पेमेंट का क्या प्रोसीड्योर है? आपको पहले बुकिंग देना होगा, उसके हिसाब से आप एज पर द, अगर आप देखिए टाइम तो अकॉर्डिंगली होता है कि बातचीत करने से। लैंड का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ऐसा कुछ अच्छा भैया, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि अपने जब कभी कोई रेडी टू मूव फ्लैट लेते हैं तो अगर सपोज मैंने बुकिंग कर ली है तो होता है कि ऑप्शन रहता है कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो कल को मैं उसको
नहीं मूव किया और मैंने इसको सेल कर दिया है कुछ, तो आपके लैंड का क्या सिस्टम रहेगा? ऐसा ही रहेगा, आप ये कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको सेल करूंगी या किसको sell? बाहर से कर सकते हैं। आप हम लोग लोग का कर सकते हैं। रिसेल डेस्क है यहाँ पे, आप यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर सकते हैं रिसेल डेस्क में। अच्छा, जो हम मेरा सेल करना है, हमको रखना नहीं है या फिर हमको सेल करना है, तो हम लोग बायर ढूंढ देंगे आपके लिए। प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्ट्री होगा, आप होंगे सब लीजर। अच्छा, ठीक है, आप जब लेते हैं आप सब लीज होते हैं। तो ये रजिस्ट्री मतलब जब मैं पूरा पेमेंट कर दूंगी लैंड का तब होगी? हाँ, तभी आपका रजिस्ट्री हो जाए आपके नाम पे। मगर आप म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन हाँ, आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो केएमडी के नाम पे ही रहता है। Payment, हम लोग के नाम पे भी नहीं। मतलब एक बात से ये चीज जो है, आपका गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, हम लोग लीज में, मतलब हम लोग रेंट पे है, आप लोग भी हम लोगों से रेंट ले रहे हैं, ऐसा चीज है। एक तरफ नए ग्राहकों को लुभाया जा रहा है तो दूसरी ओर पुराने ग्राहकों का पैसा नहीं दिया जा रहा, उनका फोन तक नहीं उठाया जा रहा, यहाँ तक कि उनके पैसे लेकर 1 इंच ईंट तक भी नहीं लगाई गई। ऐसे धोखेबाजों से पैसे लगाने से पहले हो जाए सावधान। पैसे निवेश करने से पहले अच्छी तरह परखें हर चीजों को। अगर आप भी इस तरह के जालसाजी में हैं फंसे तो तुरंत फोन उठाएं और करें लाइव कोलकाता को कॉल, जो हर जालसाजी को करेगा नाकाम। अब ये रिपोर्ट देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी ने न जाने कितने लोगों को लूटा है। अगर आप भी हैं ठगी के शिकार तो बस हो जाइए सावधान।